নমস্কার আপনাদের সবাইকে। আমরা কিছুদিনের মধ্যে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস এবং ম্যাথসের কোচিং ক্লাস 9, 10, 11, 12 এর জন্য স্টার্ট করছি। তার সাথে আমাদের আরও অন্যান্য সিলেবাস কোর্স করানো হবে, অল সাবজেক্টস টিউশন। আর তার সাথে আমাদের রোববার শনিবার আর্টে ক্লাস হবে, মিউজিক ক্লাসও হবে। আমাদের মানে এই যে ক্লাসগুলোটা হবে দুটো সেন্টারে, একটা হবে আমাদের সদরঘাট পয়েন্টে শিলচর, আর একটা আছে আপনাদের মেহেরপুর কোঅপারেটিভের সামনে। অ্যাড্রেসটা দুটোই দেওয়া আছে, দুটো ব্যানারে দুটো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। কাইন্ডলি যোগাযোগ করবেন, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে নিচে। এই 3টে ফোন নাম্বার আছে। প্রথম ফোন নাম্বারটা যদি আপনারা না পান তাহলে পরবর্তী ফোন নাম্বারগুলোতে আপনারা ট্রাই করবেন। ঠিক, নমস্কার। আমাদের ডেমো ক্লাস শুরু হচ্ছে। এই আমাদের ডেমো ক্লাস দুজন টিচার দিয়েছেন এই ভিডিওতে। আপনারা কাইন্ডলি দয়া করে একটু দেখবেন আর একটু শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। I'm going to I'm going to talk about the common grammatical error that I hear quite a lot, even among some more fluent speakers, and that makes me cringe. It's the confusion between these two words, then and that. One of them is used in the context of time, and the other is used as a comparative. For example, you could use a then like, he went home and then ate a snack. And for the comparative word than, you could say, my wife is more intelligent than me. Hello again. I'm now going to give you a tip on pronouncing the th sound in English. But before I start, I would like to talk about the shape of our mouth. We put our tongue in between our teeth and we blow air out between them. The first sound is voiced, which means we use our vocal cords, and the second is unvoiced, which means we don't use our vocal cords. Let me show you. Voiced. There's vibrations. Unvoiced. No vibrations, because you don't use your vocal cords. And now, let's get some practice by saying some common words. This, thing, though, through, mother, birthday, clothes, fourth, bathe, and bath. And of course it helps to use them both in a sentence. I never sunbathe, but I love a bath. And now remember to say them out loud so you're getting enough practice. I look forward to working with you. Good night. गुड इवनिंग। आज आसाम करियर बिल्डर पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, इसमें जो डेमो क्लास का एक ये है, जिसमें मुझे आज मैथ्स का डेमो क्लास लेने के लिए बुलाया गया है। उसमें मेरा कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ व्यू, कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कभी भी किसी भी स्कूल, किसी भी एकेडमिक सेशन या ट्यूशन कहीं भी जाता हूँ तो सबसे पहले स्टूडेंट को एक ही मेरा क्वेश्चन रहता है, जो व्हाट इज मैथ्स। मैथ्स क्या है और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ्स इन आवर लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरा लगभग 1998 से टिल नाउ मैं इसी प्रोफेशन पे हूँ, ट्यूशन या स्कूल का टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे सामने, टीचर्स के सामने, स्पेशली मैथ्स टीचर के सामने। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट ग्रो नहीं करते, मैथ्स अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है टीचर्स के सामने। सो ये तो एक बात सही बात है, जो विदाउट मैथ्स नथिंग इज पॉसिबल इन आवर लाइफ। हमारा लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे एक्टिविटीज हम करते हैं। So many activities we have done in our life every day, हर दिन। ये हर एक एक्टिविटी में मैथ्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता ही है। कोई अगर ये बोले जो मैं बिना मैथ्स का लाइफ गुजारा कर पाऊंगा, तो मेरे तरफ से ये पूरा क्लोज है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो
क्लास 9-10 का सिलेबस या क्लास 9-10 के जो चैप्टर्स है उसको शुरू करने से पहले थोड़ा मैं मैथ्स के ऊपर बोल रहा हूँ. So what is maths and importance of maths in our life? It is very necessary. So डिक्शनरी में जो हम ढूंढते हैं मैथ्स क्या है, तो उसमें सिंपल वर्ड में लिखा रहता है द नेचुरल नंबर 1 2 3 इज मैथ्स. ठीक है. अब एक ग्रेट फिलोसोफर, हमारा इंडियन का एक ग्रेट फिलोसोफर, एक बातों बातों में किसी एक दिन उनका शिष्य को बोले थे, बोलो तो बंगला से बोले थे, बोलो तो गणित काके बोलो, मैथ्स काके बोले, मैथ्स किसको कहते हैं. तो कोई सभी अपना अपना ढंग से उत्तर दिया. बाद में उन्होंने इनका डेफिनेशन दिया था मैथोडोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मैटर इज मैथ्स. किसी भी मैटर को सिस्टमेटिकली एनालाइज करना, मैथोडिकली एनालाइज करना, यही मैथ्स है. वन एग्जाम्पल, सुबह उठकर मॉर्निंग पे हमारे घर के मम्मी लोग या मेरे बहन सिस्टर लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले चाय का जरूरत होता है, टी का जरूरत होता है. चाय अगर सुबह नहीं मिलेगा तो दिमाग गर्म हो जाता है. अब इसमें कहाँ मैथ्स यूज होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये चाय पीने में मैथ्स कहाँ यूज हो रहा है. बट मम्मी को मालूम है जो ये चाय बनाने के लिए एक मेथड होता है, स्टेप को फॉलो करना पड़ता है. अगर स्टेप फॉलो नहीं होगा तो चाय नहीं बनेगा. तो सो इट इज वेरी नेसेसरी टू फॉलो द स्टेप हाउ टू मेक टी. कैसे हम चाय बनाएंगे, कैसे हमें टी बनाना है, कैसे हमें सो मेनी आइटम्स आते हैं. मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें क्या है, स्टेप को फॉलो करना पड़ता है. दिस इज मैथ्स. केंद्रीय विद्यालय सेक्टर में जब वर्क करता था तो मैं स्टार्टिंग पे क्लास 9-10 के स्टूडेंट को पूछा था, जो बोलो तो ऐसा एक एक्टिविटीज बोलो हमारा रियल लाइफ से जिसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता. तो स्टूडेंट लोग थोड़ा नादानगी होता है, प्लीज डोंट माइंड. किसी ने उठ के बोला सर सुबह उठकर हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, उसमें मैथ्स कहाँ से यूज होता है. हाँ, मैं बोलता हूँ इसमें मैथ्स यूज होता है. सबसे पहले मैं टॉयलेट की अगर बात करूँ, टॉयलेट का जब टैंक बनाया जाता है तब क्या होता है, मिस्त्री जो होता है जो इसको बनाता है वो क्या पूछता है, जो तुम्हारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इस टैंक का, इस टॉयलेट का जो टैंक है इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, कितना चाहिए, डिपेंड करता है इस टॉयलेट को कितने लोग यूज करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड रहता है इसका हाइट, इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ. अगर इस फॉर्मूला को अगर हमें मालूम नहीं चलेगा तो हम कहां से कर पाएंगे, मिस्त्री हमें ठग जाएगा. तो इसमें मैथ्स यूज हो रहा है. तो ईच एंड एवरी आइटम इन आवर लाइफ वी हैव यूज्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. विदाउट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नथिंग वी हैव डन, नथिंग वी हैव टू डू, राइट. और एक सिंपल, हम बड़े हो गए तब घर में कोई हमारे पड़ोसी वाले आते हैं, लोग पूछते हैं जो मुझे घर बनाना है तो मुझे ईंट कितना चाहिए घर बनाने के लिए. तो मुझे अगर फॉर्मूला मालूम है, अगर उसको बोल नहीं पाऊंगा, मैं एक शिक्षित आदमी हूँ, मेरे पास क्वालिटी है, मेरे पास एजुकेशन है, और मुझे अगर फॉर्मूला मालूम नहीं है, कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, तो मैं इसको बोल नहीं पाऊंगा. और मुझे अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, उसका फॉर्मूला मालूम है, उसका मेथड मालूम है, तो मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ. जो भाई तुम ये बिल्डिंग बनाने के लिए तुम्हें इतना ब्रिक्स चाहिए, इतना सैंड चाहिए, इतना स्टोन चाहिए, इतना ये चाहिए, हम बोल सकते हैं. तो देखो मैथ्स का इंपॉर्टेंस हमारा लाइफ में हर एक एक्टिविटी में मैथ्स का इंपॉर्टेंस है. तो मैथ्स के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया, आगे धीरे धीरे इसके ऊपर और भी मैं नॉलेज देते रहूँगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग, आजकल क्लास 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, और जो 9th के जो स्टूडेंट हैं उन लोग 10th में जंप करने वाले हैं बहुत शॉर्टली, बहुत जल्द. मैं मैथ्स का एक चैप्टर ले रहा हूं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. जो क्लास 9 पे भी है और 10 पे भी है, दोनों ही क्लास में ये दो चैप्टर है.
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम। इसका कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला को जानना पड़ेगा, इसके बाद ही जाके इसका जो क्वेश्चन मिलता है उसको हम सोल्व कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो उसका सोल्व हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फॉर्मूला जान लेते हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं मेरा इस क्लास का एंड पे मैं टिप्स भी दूंगा एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, जो मैंने खुद अपना बड़ा बेटे के ऊपर मैं इस्तेमाल किया था और मैं सक्सेस भी हुआ। नाउ सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें कुछ फिगर्स होता है, कुछ शेप्स है। फर्स्ट वन फिगर ले रहा हूं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, सपोज इसी को एक ज्योमेट्री बॉक्स है, सपोज ये क्यूबॉइड का शेप है। इस क्यूबॉइड का शेप में कितना फेसेस हो रहा है, कितना फेस है क्यूबॉइड पे, देखो 1 2 3 4 5 6, कितना फेसेस हो रहा है, 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 फेसेस। फेसेस कितना है, 6। इसमें एजेस कितना हो रहा है, ये जो एज है एक क्यूबॉइड में एज कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस। इसमें वर्टेक्स कितना हो रहा है, इन कॉर्नर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब चैप्टर्स ऑलरेडी हम क्लास 8 7th में विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स या फिर 3 डायमेंशनल फिगर, उस सब चैप्टर्स में ये सब के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये फेसेस है। अब देखो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो फेस है, हर एक फेस कौन सा शेप में है, ये क्यूबॉइड है, ये हर एक फेस कौन सा शेप में है, ये क्यूबॉइड। दिस विल बी ए परफेक्ट एग्जांपल। ये क्यूबॉइड जो है कौन सा शेप में हो रहा है, हर एक फेस, ये फेस है, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, कौन सा शेप में हो रहा है ये क्यूबॉइड, दिस इज रेक्टेंगल। कौन सा शेप में हो रहा है हर एक फेस, रेक्टेंगल। क्यूबॉइड का हर एक फेस रेक्टेंगल का हो रहा है। और हम भले बातें जानते हैं कि क्लास 6 से ये मिल रहा है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, वो हमें मालूम है। अब मैं इसको डिटेल्स में दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज क्यूबॉइड। अब मैं इसको फर्स्ट फेस, इसको पहला फेस को ले रहा हूं, फर्स्ट नंबर फेस। इसमें देखो क्या है, ये जो एजेस है, ये जो साइड है, ये जो एज है, उसको क्या बोलेंगे, दिस इज लेंथ। ये क्या होगा, लेंथ। ये जो एजेस है उसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लेंथ। दिस इज ऑल्सो लेंथ, ये भी लेंथ, यानी ये लेंथ, लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। ओके, देन ये लेंथ हो गया। अब ब्रेथ कौन सा होगा, दिस इज ब्रेथ, यानी ये क्या हो गया, ब्रेथ। ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, यानी ब्रेथ, ब्रेथ, ब्रेथ। अब ये जो है, ये एजेस क्या हुआ, हाइट। हाइट ऑलवेज कितना डिग्री पे स्टैंड रहता है, 90 डिग्री। ये क्या हो गया, हाइट। अब इस क्यूबॉइड में टोटल कितना लेंथ हुआ, टोटल कितना हाइट हुआ, टोटल कितना ब्रेथ हुआ। तो इसमें कितना लेंथ हुआ, 1 2 3 4, 4 लेंथ। ब्रेथ कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ। हाइट कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 हाइट। अगर इसमें देखो सेम 1 2 3 4 लेंथ, ब्रेथ 1 2 3 4, 4 ब्रेथ, हाइट 1 2 3 4 हाइट। अब
सबसे पहला फॉर्मूला जो बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें लेंथ कितना हुआ, मैं सबको एक साथ 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, सॉरी आई एम मिस्टेकिंग देयर, टोटल 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ और 4 हाइट। इसके बाद हमें एक फॉर्मूला बनाना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है क्यूबॉइड में। अब मैं फर्स्ट फेस, इस फेस को पकड़ता हूं, तो ये जो नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मैं फेस नंबर 1, इसको अगर फेस नंबर 1 पकड़ लूं तो इस फेस में क्या क्या हो रहा है, लेंथ और हाइट। कौन सा शेप में है ये फेस, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमें मालूम है, वी नो द रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट ये जो फेस है, इस फेस में क्या क्या है, ये एक लेंथ है और ये एक हाइट है, ये लेंथ और ये हाइट। तो लेंथ और ये हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकलेगा, इस फेसेस का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट दैट इज LH। अब प्लस करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक, इसका ऑपोजिट फेस पे जाओ, ये क्या है, लेंथ और हाइट। तो फॉर्मूला क्या बना, ये कौन सा शेप में है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू दिस हाइट, लेंथ इनटू हाइट। देन अगेन अब इस फेस पे जाता हूं, इसमें क्या है, ब्रेथ और हाइट BH प्लस इसका ऑपोजिट फेस में ब्रेथ इनटू हाइट। 4 फेसेस हो गया और 2 फेसेस बचा है। अब ये फेस को दिखा दो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ था। अब इस फेस को देखो, ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो इस फेस का एरिया क्या होगा, L इंटू B। ठीक, इसका ऑपोजिट फेस, ये L और ये B, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, LH 2 हो रहा है, BH 2 हो रहा है, 2 LB हो रहा है। अब तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। अब इसको नेचुरली कैसे लिखते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L बने लेंथ, B बने ब्रेथ, H बने हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकलता है। नेक्स्ट वन, लेटरल सरफेस एरिया। मैं सरफेस एरिया का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सरफेस S.A, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और ऐसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हम बोल सकते हैं। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, हमारा रूम है, रूम के ऊपर सीलिंग रहता है, नीचे फ्लोर, ऊपर सीलिंग नीचे फ्लोर। ऊपर का सीलिंग जो है वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है, नीचे का जो फ्लोर है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में है। सपोज ये था रूम, तो ये रूम का ये हो गया टॉप लेवल, ये हो गया बॉटम लेवल। हमें सिर्फ ये 4 फेसेस का एरिया निकालना है, जिसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और ऐसे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, इस रूम का अगर देख ले, देखो इधर से क्या है, इधर से लेंथ, इधर से ब्रेथ और इधर से हाइट। तो 4 वॉल्स देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर पहले इस साइड का वॉल को पकड़ ले तो ये क्या होगा, लेंथ और हाइट। हर एक फेसेस रेक्टेंगल है, वही फॉर्मूला, लेंथ इनटू हाइट प्लस, अब इस साइड का वॉल को पकड़े, ये क्या है, लेंथ, ये सॉरी ब्रेथ और हाइट प्लस, फिर से इस साइड को पकड़े, इस साइड को लो तो क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट
फिर से ठीक इस वाल का जैसा लिया था, इसका ठीक ऑपोजिट वाल क्या होगा, सेम ब्रेथ इनटू हाइट। चार ही वाल था, ऊपर सीलिंग और फ्लोर का नहीं लेना है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स में क्लियरली बोला है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स दैट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें LH कितना है, 2LH, BH कितना है, 2BH। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन हो रहा है और H कॉमन हो रहा है। H बचा क्या, L प्लस B। सो क्या फॉर्मूला बना, 2 into L plus B into A। This is the formula of lateral surface area of cuboid, that is area of 4 walls. One question more, कभी कभार क्वेश्चन में आता है, एक ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, एक ज्योमेट्री बॉक्स है और बोल के दे देगा ज्योमेट्री बॉक्स का जो ओपन के टॉप साइड ओपन किया, खुला हुआ है टॉप साइड। एक ज्योमेट्री बॉक्स है, सपोज इसका टॉप साइड खुला हुआ है और इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालना, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, इसका ओपन साइड खुला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2LH 2 plus 2BH 2LB। एक ओपन एट द टॉप ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, मैं शॉर्टली देख ला हूं, G बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। इसका सरफेस एरिया कैसे निकालें, इसका सरफेस एरिया होगा एक ज्योमेट्री बॉक्स का, ये मान लो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये दिस इज, इसका टॉप खुला हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमें नहीं लेना। ये टॉप वाला कौन सा शेप में था, रेक्टेंगुलर शेप में था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बॉटम में भी क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जबकि ऊपर का ढक्कन यानी ज्योमेट्री बॉक्स का टॉप ओपन किया हुआ है, तो एक लेंथ ब्रेथ यूज नहीं होगा, ओनली एक लेंथ ब्रेथ यूज होगा, क्योंकि ऊपर वाला टॉप वाला खुला हुआ है। सो ऊपर वाला का लेंथ ब्रेथ जो एरिया है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, नीचे वाले का जो लेंथ ब्रेथ है, एरिया है, उसको इंक्लूड करेंगे। बाकी जो इसका फेसेस है उसका जगह में रहेगा 2BH और 2HL, ठीक है। ये होता है अगर किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया जो इसका ओपन टॉप साइड ओपन किया हुआ है या बॉटम साइड ओपन किया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। सो ये है इसका मेन, कैसे ब्रेकडाउन करके फॉर्मूला बनाया गया, ये है मेन फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे जो भी क्वेश्चन आए। इस क्वेश्चन में क्या है मेन, सरफेस एरिया हम क्यों निकाल रहे हैं इसकी क्यूबॉइड, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है क्वेश्चन। जो एक ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें कितना मेटल शीट लगा, कितना मेटल शीट लगा है इस ज्योमेट्री बॉक्स बनाने के लिए, कितना मेटल लगा है, चाहे एल्यूमिनियम से बना, टीन से बना, जिसे भी बना, कितना मेटल शीट लगा है, तब जाके ये टोटल सरफेस एरिया हमें ये सरफेस एरिया निकालना पड़ता है फॉर दैट, ठीक है। अब दूसरा इसमें आ जाएगा, अगर इसमें ये इसका कैपेसिटी कितना है, इस बॉक्स में कितना जगह होगा, तब जाके वॉल्यूम निकालना पड़ता है। बट मेटल शीट कितना निकला है, इसके लिए सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूला यूज करके निकालना पड़ता है। ये हो गया फर्स्ट वन, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का और एक फॉर्मूला है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, इसका कैपेसिटी कितना है इस क्यूबॉइड का, एक क्यूबॉइड टैंक है व क्यूबॉइड कुछ भी है, किसी भी शेप है क्यूबॉइड का, उसका कैपेसिटी कितना है, उसका कैपेसिटी माने उसका वॉल्यूम निकालना है। ये जो क्यूबॉइड है, सपोज दिस इज क्यूबॉइड, अब इसका नीचे वाला फेस तो मालूम है रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन इसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड। अब देखो ये जो क्यूबॉइड है रेक्टेंगुलर शेप है, अगर एक के ऊपर इस तरह का रेक्टेंगुलर शीट अगर रखेंगे, रखते 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 कितना सारा रखते रखते क्या हो जाता है, ये क्यूबॉइड शेप पे बन जाता है, क्यूबॉइड शेप हो जाता है। लेकिन कितना रेक्टेंगल का पीस इसमें स्टैक लगाया है इस क्यूबॉइड में, कोई काउंट नहीं कर पाए, वी अनएबल टू काउंट, हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे कितना इसमें जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू कितना रेक्टेंगल इसमें जगह होगा, रेक्टेंगल का पीस जगह होगा वो तो काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाइट तो मेजरमेंट कर पाएंगे। सो इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ और हाइट तो मालूम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, एल बी एच, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब। क्यूब होता है, क्यूब का हर एक फेस सेम होता है और इसका हर एक एजेस भी सेम होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड में जैसा 12 एजेस था तो इसमें भी एजेस कितना होगा 12। क्यूबॉइड में फेसेस कितना था 6, क्यूब में भी 6 है। वर्टेक्स कितना था यानी कॉर्नर, उसमें था 8, इसमें भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स आती है, ये तो सेम है। अब क्यूब का जो फेस है, क्यूब का जो फेसेस है, हर एक फेस कौन सा शेप में है, हर एक शेप क्यूब का हर एक फेस कौन सा शेप में है, स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर। और हम छोटे से पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 5 6 से पढ़ के आ रहे हैं, जो स्क्वायर का एरिया, वी नो द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ना। अब इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे, वही 6 फेसेस है तो 6 इंटू, इसमें हर एक फेस स्क्वायर है और स्क्वायर का हमें एरिया मालूम है कितना, साइड स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर। जबकि 6 फेसेस से बार बार साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक स्क्वायर शेप का है, हर एक का साइड, हर एक का एज भी इक्वल है। ये अगर 4 सेंटीमीटर होता है तो हर एक एज 4 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें लिख देते हैं 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब क्लास 9 10 का फॉर्मूला में जो लिखा है 6a स्क्वायर, वाई ए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी ए, इसीलिए लिखा जाता है 6a स्क्वायर। ये बना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वही क्यूबॉइड में जो था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसमें वही 4 फेसेस को ये करना है, 4 वॉल्स का निकलना है। क्यूबॉइड में चारों वॉल्स का डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग था, बट इन क्यूब एक क्यूबिकल शेप का अगर कोई रूम होता है, घर होता है, तो उसका क्या है, उसका हर एक हाइट लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम होगा। तब इसमें क्या है, 4 वॉल्स का निकलना है और हर एक फेस स्क्वायर है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो आंसर इज 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर। और एक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें भी सही, कितना स्क्वायर शीट को एक के ऊपर एक रखने से, ऐड करने से, ऐड करके ये क्यूबॉइड होगा, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वी आर अनेबल टू काउंट, बट वी नो द हाइट, हमें हाइट मालूम है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ अगर हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाता है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, हाइट क्या है माने एज, और इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब में सब कुछ सेम होता है, तो हाइट भी ये हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्यूब से रिलेटेड का फॉर्मूला था। और ये जो दो अभी डिस्कस किया, क्यूबॉइड और क्यूब, दोनों ही कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 पे भी यूज हो रहा है, 9 का भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत सारा है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, ठीक है। क्लास 10 का जो चैप्टर है बहुत जल्द एग्जाम 3 मार्च से एग्जाम शुरू होने वाला है, उसमें भी
ये सब के ऊपर बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर बोलते जो हमारा घर में सिर्फ गैस, শর্ট 3 মিনিটস 3 মিনিট শেষ করে अच्छा एक मैं नेक्स्ट किसी दिन इसका एक लाइव वीडियो बना के इसका एक डेमो दिखाऊंगा। मैं सिर्फ शॉर्टली अभी इसको एक दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 1/only पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक मैं कोन ले रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं दोनों का डिफरेंशिएट किया है। जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यू बना। पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। This is another topic. Okay, sir. Please explain. नो अभी मैं एक शॉर्ट डेमो दिखा रहा हूँ, बाद में उसको इन रियलिटीज में उसको डेमो दिखाऊंगा किसी दिन। सिलेंडर और कोन, एक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये कैसे हुआ 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही मैं दिखा रहा हूँ। पहले एक सिलेंडर, ये सिलेंडर का रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर का है तो ये कोन का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा। सिलेंडर का हाइट सपोज 9 सेंटीमीटर लिया तो इसका भी हाइट 9 सेंटीमीटर होगा, कोन का भी 9, यानी सेम बेस और सेम हाइट होना पड़ेगा दोनों, सिलेंडर और कोन। पहले क्या करूं, इस कोन पे पूरा टॉप लेवल तक पानी से भर दूंगा, पानी से लोड कर दूंगा। फिर इस पानी को क्या करूं, इसमें सिलेंडर में डाल दूं, ठीक है। फिर इस सिलेंडर का पानी वाटर लेवल का जो हाइट है इसको मेजर करो, देखोगे ये 3 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माने सिलेंडर का वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट क्लास में और भी दिखाऊंगा ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।